اپنی زندگی میں چند جو بہت شریف النفس فنکار دیکھے میوزک انڈسٹری میں، ان میں ارشاد بھائی سر فہرست لوگوں میں ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ارشاد علی بھائی ایسا رنج ہوا جیسے میرا باپ مر گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ میں ایک بہت سارے واقعات ارشاد علی بھائی تو میں نے گزارش کی تو انہوں نے جب اپنا تعارف کروایا تو مان دی، پر انہوں نے کہا کہ میں اپنی کمپوزیشنیں بھیجو۔ جب میں نے کمپوزیشن بھیجی تو سن کے کہات تھی اب یہ تھا مطلب کہ اب کس کو رکھا جائے موزیشن سے، اور لائیو ریکارڈنگ ہوتی تھی تو میں ارشاد علی صاحب کے پاس گیا آج تک بجا رہے ہیں۔ اسی طرح 25 سال تو ہو گئے میرے خیال ہے کہ ارشاد علی صاحب یہ میرا اعلان ہے، اور یہ میرے میوزیشین یہاں بیٹھے ہیں صحیح کی، چاہے وہ کتنا ہی لمبا فلیش بجایا انہوں نے، لگتا تھا کہ وہ پتہ نہیں مووی اس اسکیل سے باہر جاتی، اس اسکیل کے اندر وہ کام کر رہے ہوتے، لائف کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ یہاں بڑے بڑے میوزیشین بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا بھاری کام ہے، کہ لائف میں بجاتے ہوئے آپ کی انگلی 100% انہیں سر کمال ہے نا۔ یہ ہمارے حفیظ بھائی بیٹھے ہیں، ان کا بھی یہ حال ہے، جتنے یہاں کے لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی، میں نے تو نہیں سنا ان کے سزار سے کبھی کوئی جتنے بھی آرٹسٹ ہمارے ہیں اور جو زندگی کی طرف جا رہے ہیں، سیریلٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو پلیز ان سب کی قدر کیجیے اور جونیئرس کا خیال رکھیے، سینئرس کا احترام کیجیے۔ بس جیسے ہمارے بڑوں نے بتایا ہے ویسے ہی کرتے چلے جائیے۔ اور یہاں پر تمام جتنے بھی ہمارے سینئر، جن کو میں اپنے طور پر کہتی ہوں کہ تمام کے تمام لوگ تو ارشاد میں تو بغیر نہیں ہوتا، یہ ہم نے پوری زندگی دیکھا ہے، اور ان کی ہمدردی
جو کہ اس وقت تک پتا چلا کہ ایک ٹیون بھاولپور میں لودرا میں کسی نے بنائی ہے، ایک ٹیون بندیال میں کسی نے بنائی ہے، اور وہ ٹیون ان کو دی گئی کہ جی اس کو آپ یہ فلاں آرٹسٹ سے گوا دیں، تو اس کو ایسا ارینج کیا کہ وہ گلوبلی ہٹ ہو گئی، سارے جہان میں پاپولر ہو گئی. تو یہ ان کا ایسا ہڈن کریڈٹ ہے جس پر کبھی بات نہیں ہوئی. بیوپاریوں نے صرف پیسہ کمایا، شہرت نہیں، مطلب پرواز کی طاقت دی لیکن پر باندھ کے. تو یہ بھی ہوا ہے ہمارے یہاں، ایسا بہت سارے لوگوں نے. امید علی، ارشاد علی کے کریڈٹ پہ سینکڑوں ہٹ نمبرز ہیں. پوری کمپوزیشن بجا دیا کرتے اور یہ بڑے لوگوں کی شان ہے. میں صرف یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک جو ہمارے موجودہ دور میں زندہ فنکار باقی ہیں، پاکستان فلم اینڈ ٹی وی ایسوسی ایشن سے درخواست کروں گا کہ جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی کچھ کریں. تو یا کوئی بھی ادارہ ہو، بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ جو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اس کے لیے سب کو جمع کر. لیکن ہمارا کام یہ ہے جو رہ گئے زندہ ہیں وہ کو اس طرح یاد کریں کہ ان کی خوش ہو تو کچھ کر کے کام کے اوپر کیا ہم لوگوں میں کیا بات کریں. وہ تو یکتا تھے، منفرد تھے، لاجواب تھے، تجربے کے ساتھ. میں نے پوری سی دنیا دیکھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میرا بہت کم ساتھ رہا ہے. وہاں سب کی پرفارمنس تھی، سیکنڈ لاسٹ میچ تھا، میرے بعد اشتہار ہوئے تھے، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ ارشاد بھائی وہاں ہے کوڈیم میں. مہمان بنتا ہے، اللہ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور بڑی سی بات کہیں بیٹھنے سبھی کسی کو نہیں پہچانتا. اور پاکستان ٹیلی ویژن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، مولوی بھائی نے رکھے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت بجانا. اور نظر بات کی سب سے زیادہ میں نے ارشاد بھائی کے ساتھ کام کرا، اور صحیح بیٹھا ہوا ہے ہمارا والد بھی ہے، اس نے بھی سب سے زیادہ ارشاد بھائی کے ساتھ کام کرا. اس سے 3-4 سال سے کنٹینیوس ٹی وی سے اس کو سارا بہت ساتھ کرتا ہے. میری دعا یہ ہے کہ تمہارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک علم جس طرح ہم بول رہے تھے، اور ایک حلم. میں نے کہا علم تو سے نہیں سمجھ رہا، حلم کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علم تو یہ ہے کہ جو تم نے سیکھا ہے، اور حلم یہ کہ جس طرح اس کو پیش کرنا ہے. وہ دونوں چیزیں تمہارے اندر ہے. تو تمہیں بہت ساری دعائیں ہیں. تو خورشید بھائی اور بھائی آپ سے دونوں سے بہت پوری فیملی سے اور پوری فیلڈ سے ہماری اور دونوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد بھائی کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اطہر بھائی اور قاسم بھائی اور تنویر بھائی، آپ سب کا بہت شکریہ کہ اتنا زبردست آپ لوگوں نے پروگرام کیا ہے، اور سب کو ان کی یاد سے جوڑنے کے لیے اور سب کو ان کے لیے کچھ تھوڑا بہت بولنے کا موقع دیا. تھینک یو سو مچ. کسی کا دل نہیں سنتے، کسی کا دل دکھاتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے تھے، سب زبانیں بات نہیں کرتے، اور کام پوری ایمان لاتے اور زندگی سے اس تفریح کے بغیر کہ کون ان سے کتنا جونیئر ہے اور کون کتنا سینئر ہے، بہت محنت سے اپنے کام کے ساتھ کسی اور کا کام سجانے والے شخص ہے. ابھی ہم نے ویڈیو دیکھا، ان کے چہرے پہ اب تک ایک جوانی، ایک تازگی، ایک روشنی اس
इसलिए एक बात मैं साफ दिल के हुआ तो मुजाहिद साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा यार शाम को अगर मस्जिद को मुलाकात करनी हो गया बहुत अच्छा है। मैंने पूछा कि आप कहाँ होंगे, क्योंकि मैं सज्जाद की तरफ जा रहा हूँ, जाने की रह सकते तो एक एड्रेस उन्होंने बताया, वो चौथी मार्केट रहते तो मैं जब वहाँ गया तो पता ये चला कि मुजाहिद साहब को सही मालूम वहाँ आसिफ मेहदी भी आने वाले थोड़ी देर में अपनी फैमिली के साथ, तो ये गाना बस याद करेंगे और उसके बाद उनका कोई पहले से फैमिली का कोई है कराची में ये वाक्य दोहराया, वो मैंने भी देखा जिससे मुझे पता चले कि माँ की याद है कैसे करने के लिए, ये दुख के बाद, ये परेशानी के बाद हम सिर्फ इंतजार करते हैं याद में प्रोग्राम तो हम जाया करें। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सस्ता काम है, फोन कर दिया कर, बहुत आसान है। किसी जगह कोई आ रहा हो तो खुद भी चले जाए और वहां जाके और कुछ दिल से कुछ अपनी गलतफहमी दूर होती है, कुछ दूसरे के बारे में अपनी राय अच्छी होती है। तो ये छोटे छोटे मौके होते हैं, मेरा ख्याल है। बहुत से लोगों ने कहा कि जिंदगी में कुछ किया जाना चाहिए, हम क्या करते हैं अपने लिए, ये भी तो सोचते हैं हम। कुरान का कहना है, मैंने एक बार पहले भी कहा था, और अल्लामा इकबाल ने उसको अपने शेर में बांधा है, कुरान पाक की इस हिदायत को या मशवरे को। तो शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको क्या आप अपनी हालत के बदलने का। यह अल्लामा इकबाल ने कुरान को तर्जुमा किया। अगर कुरान है तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं सोचते इसके बारे में, या वहां तो मुझे नहीं बुलाया, वहां तो ना जाएगा तो मेरा क्या काम है, मेरा क्यों नहीं है काम, मेरा भाई है वहां। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इरशाद साहब बहुत बड़े और एक और बात कहना चाहूंगी, उनके फन के बारे में तो नहीं, क्योंकि मैं इस लाइक नहीं हूँ कि उनके टैलेंट या उनके काम के बारे में कुछ भी बोल सकूं। उनने मुझे हमेशा एक फादर फिगर देखा, हमेशा बड़ी शक्ति से मिलते थे और हमेशा अप्रिशिएट करते थे, कहीं गलती होती थी तो उसको सुधारते थे, बताते थे। इसी तरह खुर्शीद साहब भी हैं, वो भी इसी तरह। तो आई थिंक इन दोनों भाइयों की पर्सनालिटी सबसे म्यूजिक इंडस्ट्री में जितने भी म्यूजिशियंस हैं सबसे ज्यादा नफीस और बहुत ही सादा और बहुत ही डाउन टू अर्थ। हालांकि इतना इल्म जानने के बावजूद, जैसा कि अभी किसी ने मेंशन किया कि इतना इल्म जानने के बाद इंसान में थोड़ा सा तकब्बुर आ जाता है, पर मैंने अपनी जितनी भी लाइफ में इरशाद साहब के साथ या खुर्शीद साहब के साथ जितना भी काम किया, कभी उनकी पर्सनालिटी में इस तरह का कोई अंसर नहीं देखा। अपने दामन में रखी और की वो आंचल में है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगी कि अपने दिलों में उनकी मोहब्बतों को कम ना कीजिएगा, उनको अच्छे अल्फाजों में उनकी जिंदगी में भी आप लोग याद करते थे, वो चले गए तो भी याद कर रहे हैं। लेकिन ये जो तमाम हमारे सामने फैमिली सब बैठी हुई म्यूजिक फैमिली, उनको मैं यही दुआ करूँगी कि परवरदिगार इन सबको जिंदगी अता फरमाए, क्योंकि कब की अच्छी बातें, हम सबके अच्छे अम्मान मोहब्बतें ये सब याद रहती हैं। तो इरशाद साहब के लिए बहुत सारी तालियां भी हो जाए। और मैं अनाज का वो एक गाना जो इरशाद साहब के साथ मैंने बस में ले दिया सर ने, अगर हम जब इरशाद साहब की इजाजत है। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी संग रहेगा।
यहाँ कोई चीज हम उनके लिए क्यों नहीं करते? बहुत लोगों ने यहाँ अपना आप दिया है। बशीर साहब जब इंडिया गए और बशीर साहब का प्रोग्राम हमने देखा, यकीन कीजिए अपने ऊपर ये सोच के बड़ा फख्र हुआ कि हम इनकी जूतियों से पास भी बैठने के लायक नहीं है, लेकिन ये हमें अपने साथ बिठाते। इतनी मोहब्बत देने वाले बड़े बड़े लोग, अल्लाह उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला से दरख्वास्त है कि परवरदिगार दो आलम ऐसे लोग पैदा करते रहिएगा जो हम जैसे छोटे छोटे लोगों को इज्जत एहतराम दिलवाते रहे। मैं आप लोगों का शुक्र तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे इंसान को भी आप लोगों ने इस केक पे बुलाया। लेकिन मैं एक बात जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे यहाँ के, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। परवरदिगार अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके साथ बहुत सारा काम किया मैंने, स्टेज पे भी काम किया और स्टूडियो, मैंने स्टूडियो रखा है यार, स्टूडियो के नाम से। तो गाने साथ सबके साथ उन्होंने बजाना, ये था। बहुत सारे रिकॉर्डिंग की उनके साथ, बहुत यादें हैं। तो अकॉर्डिंग जो थे बजाने वाले को 4 से 5 थे, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर जो था वो विक्टर दादा, इरशाद अंकल, मंजूर भाई और नसीम मार्टन, ये सारे मेरे टीचर्स। और मेरा कैसेट जो मेरा पहला कैसेट पहले था रंगो टोंगो, जो भी भाई ने जिक्र किया, उसमें जो वायलिन पेज था वो पूरा मेरे शब्द मौसीकार उनका था, पूरा वायलिन पेज। क्योंकि वो शादाब स्टूडियो में इशफाक भाई बैठे हैं, शादाब स्टूडियो ही होता था जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी ज्यादातर बिजी, तो सही भाई को भी याद होगा। और जिस फंक्शन में ड्रम आ जाता था वो फंक्शन हम लोग के बहुत बड़ा फंक्शन होता था जिसमें ड्रम आ जाता था। अब होता ये था कि सिंगर गाना गा रहा है और अकॉर्डिंग प्लेयर अकॉर्डिंग बजा रहा है, जैसे मैं ही गाना। अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने यहाँ क्लिप्स देखे उनके कि वो दुनिया से गए नहीं, हमारे दरमियान, उनकी दुआ कीजिए। थैंक यू। बदकिस्मती से हमारे पास ना होने के बराबर है, और हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे शहर में ये शख्सियत मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा महबूब अशरफ ग्रुप के रोए रवा हमारे ग्रुप में इरशाद से पहले होते, इरशाद से, लेकिन इरशाद तो हमेशा हमारा साथ दिया। जब भी बुलाए मेरे से कहने में आ जाते थे, और अल्लाह ने से जन्नत पता होगा, बहुत याद आती है। इतना काम किया है सबके सामने, उनको इंडस्ट्री में मकसूद भाई लेकर आए थे, वो मुझे बताते थे तो इन्होंने किया और मैंने सारी जिंदगी इन लोगों के साथ काम किया है, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, और इनके साथ मैंने बहुत काम किया। अल्लाह उनको जवारे रहमत में जला दे और दुआ करें करना हमें सब्र जरूरी है। तो आप सबसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए दुआ करें। And I feel really privileged and honored to come here and speak about this. Such a great musician in Pakistan, which is no more with us. ये बहुत बड़ा लॉस है। इरशाद अली साहब ने ईश्वर ने बहुत से कहा, कभी गुस्से में मैंने देखा, हालांकि बैंड में बहुत सारी बातें होती थी, मगर इरशाद अली साहब आके अगर कोई भी उर्दू मेहमान हो जाता था बीच में, तो ये आके ऐसा कुछ फिक्रा बोलते थे कि सब हंसने लग जाते। ये बड़ा था, और रंगीन मिजाज भी थे, और उनकी जोड़ी बन गई थी चचा असरार के साथ। असरार साहब ढोलक बजाते थे, ये दोनों की जोड़ी थी, क्योंकि ये दोनों सीनियर थे। बाकी बैंड के हम शहजाद, कमर,
अख्तर, सिर्फ जावेद साहब सीनियर थे, शबीर साहब और असरार, तो वो सीनियर थे, तो उनकी जोड़ी बनी थी। इत्तेफाक से हमारे बैंड में 2 लड़कियां आ गई। अब कहते नहीं कि वजूद जन से कायनात में रौनक, और वो बैल बॉटम पैंट और वो बड़े बड़े जूते होते उन्हीं पहने, और चाचा साड़ी भी पहने। ये क्या हुआ? तो अख्तर ने कहा कि ये क्योंकि ये दोनों लड़कियां आई हैं, तो ये दोनों समझ रहे, वो कहता है ये मुझे लाइन दे रही है, मुझे लाइन दे रही है। तो ये थोड़ा सा रंगीन मिजाजी हर किसी को होता है, उनके अंदर था, बड़ी अच्छी बात थी। और वहां से पूरे बैंड में कपड़े अच्छे पहन के आना शुरू। हालांकि मैं उनसे कह के थक गया था, यार खुदा के लिए कपड़े अच्छे पहनो या एक जैसा पहनो नहीं। जब से वो खवातीन आई लोग लंदन से, बैंड वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड, मैनर्ड एंड एवरीथिंग। तो शोज बड़े अच्छे होते थे, और बातें करते करते मेरा दिल ज़रा गमगीन हो जाता है कि इरशाद अली साहब अभी तक मुझे लग रहा है कि जहां मैं है जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। म्यूजिशियन को चौमुखिया होना चाहिए, हर बीट को वो पिक करता है, दूसरे का जो मिजाज है उस मिजाज को फॉलो करता है म्यूजिशियन। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और बाकी जन्नत ही है, जहाँ इतने लोग उनके लिए आ गए तो वो जन्नत ही है। ये तस्दीक है, वो है ही जन्नत ही। उन्होंने अपनी जैसी भी जिंदगी गुजारी है, और हमने उनका प्रयास प्रैक्टिस देखी है, तो इतना 10-10 घंटे 12-12 घंटे उन्होंने सिर्फ ऑडियो पे लगा दी। तो पहली बात है सबसे हमारा मुल्क जो है कदर नहीं है, माशाल्लाह इतने लोग जहाँ टैलेंटेड है पाकिस्तान में। जो बराबर का हमारा मुल्क है वो भी पाकिस्तान की तरफ देखता है। पाकिस्तान मेरी वहाँ बहुत इज्जत मिली, बाकी जो मुल्क में अपने मुल्क में जो इज्जत मिलती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। हॉलैंड में मैं था तो परफॉर्म कर, लिहाजा हम आपके साथ आ नहीं सकते, पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते, पाकिस्तान मेरी ज्यादा से गुजारिश है कि आपको कल्चर में आना चाहिए, कल्चर में आपको आना चाहिए। और इरशाद साहब के लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं, वो सिर्फ आंखों से ओझल हो गए, कभी दिल से तो नहीं गए। दिल में तो जब तक है हम हमारे दिल में रहेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह करे उनको करवट रहमत करे, सबके लिए बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ये साथ ही होना चाहिए। और मुझे मजीद खुशी ये हुई कि ऊपर तशरीफ फरमा हमारे अहबाब हो नीचे, उन सबके सामने न्याज वाली कतार फर्दर नाम लूंगा तो दायरे फिर उनकी किया मैंने। तो एक दोस्ती वाला ताल्लुक है और एक घर वाला ताल्लुक है, और हम सब वाकई एक फैमिली की तरह है। अच्छा, इरशाद साहब के लिए इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ जो कुछ बोल के गई है ना, उसके बाद अब मेरे लिए कुछ कहने को गुफरान भाई है सच्ची। चलो अच्छा तुम भूल गए, निसार बदमी साहब की कंपोजिशन अकॉर्डिंग पे बजा रहे हैं, वैसे ही मसाए में भाई, मतलब इस अस्थाई में ही इतना मसाए है कि आप मजीद क्या रोए। उसके बाद उन्होंने ढेर नहीं की, एक 3 ताल में महमूद साहब के साथ एक चीज अपने लगाई है, उसमें जो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया और अपने हाथों में गुजा, मुझे लगता है कि इरशाद साहब की गुजा ऑटो पे होती थी, मैनुअल पे नहीं होती थी। गलती से तो गुजी में नहीं, अच्छा गलती से लग भी गई तो वो सही होती थी। वो अल्लाह बेटा एक दूसरे राह की शक्ल लेके फिर कहानी आगे बढ़ जाती है, इसी तरह करते हैं। फिर जनाब यानी एक उसने जो उस्ताद बच्चन खान के साथ नगमा बजाया है, जनाब यानी उस्ताद खान साहब बशीर खान साहब, जिनके लिए कहा जाता है कि जब पाकिस्तान में कोई बड़ा क्लासिकल रवैया आता है वो बेशक हमारे पड़ोसी मुल्क से क्यों ना आए,
तो वो पहले पूछते हैं कि भाई खासा बशीर खान साहब कराची में है ना, कहीं किसी दौरे पे तो नहीं है? तो हम यहाँ तक कोई इंडिया का कोई तबले वाला लेकर नहीं जाएंगे, वो पंडित अजय चक्रवर्ती हो या कोई और हो, तो इस तरह उसका बशीर खान से प्यार करते हैं। शेखी भाई, सलीम साहब, खुर्शीद भाई, गुलाम साहब यहाँ से रवैये के साथ अगर इरशाद साहब हैं तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। रिकॉर्डिंग आपने देखी ना, इस पे तबाह आसमान दूसरे म्यूजिशियन ने भी की थी, मगर जब काम नहीं बन पड़ा तनवीर भाई, तो फिर खान साहब से कहते हैं हुजूर आप आइए। एक जैसे बात की गई कि मिजाज बजाना खासा बशीर खान का, ये बड़ी बात है भाई। एक तबले वाला, एक ढोलक वाला, रिदम वाला, वो सब कुछ वो बजाएगा जो उसको याद होगा, वो आवाज़ आएगा, वो ठाकुर आएगा, वो टायला बजाएगा। जो उसके साथ नगमा बजा रहा है वो उस लय नगमा बजा रहा है, ये खुद बड़ी बात है। म्यूजिशियंस के तौर पर भाई मैंने तो ये देखा है कि अमीर इमाम साहब हो, शहजाद सलीम साहब हो, शुएब रसूल साहब हो, बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो म्यूजिक का मखदूम साहब हो, जितने बड़े बड़े शायराग आदमी हो, जितने भी नाम हो, अगर उन्होंने म्यूजिक का काम किया तो ये बात तय शुदा थी, इस सरे से नाम आएगा तो इरशाद साहब आएगा, वजीर साहब हो, रियाज अहमद साहब हो, करीम शाहउद्दीन साहब हो, जफर अली साहब हो, फेरोज साहब हो, फेरोज साहब हो, गुलाम अली साहब हो, अशरफ साहब हो, शाहिद भुट्टो साहब हो, जितने भी म्यूजिक कंपोजर्स हैं जो यहाँ थे, उनकी बात लाहौर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा गुलाम नबी अब्दुल लतीफ साहब हो, इमरान हुसैन साहब हो, फिल्मी काम भी जितना कराची हुआ वो इरशाद साहब को असबर याद। हमने जब किसी का ट्रिब्यूट के तौर पर दूसरे प्रोग्राम किए, पुराने गानों को इमरान साहब तो उसमें ये था कि जरा पहले पुराने गुफरान भाई गाने इनको रीडू करते हैं, तो जब किसी ने कहा इरशाद साहब के साथ आप ये पीस बजाइएगा, तो जब आना था हुजूर ओरिजिनल में भी मैंने बजाया। इस तरह उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो भाई आप बैठे रहे, आपके बड़े भी कोई आर्टिस्ट थे है कि रात को पूरा बजमी साहब ने पूरी रिकॉर्डिंग की है, जगह गाड़ी पूरी रिहर्सल की है, और जब टेक करने जा रहे तो लाइट चली गई। उस जमाने में कोई मोबाइल नहीं, कोई रिकॉर्डिंग का सिलसिला नहीं। सुबह आए बजमी साहब अपने किसी याद नहीं, इरशाद साहब को सारे याद भाई आपने बताया था ऐसा ही। मैं हैरान होता हूँ कि रिहर्सल करने के बाद ये लोग कैंटीन चले जाते थे, वापस आए सारे पीस याद, तो 2 घंटे तक चले गए। आज की रिकॉर्डिंग कल हुई, कल की परसों हुई। किस तरह मुमकिन है? मतलब उनके अल्लाह ताला ने इनके दिमाग में मतलब देन तो थी, मगर एक कंप्यूटर डाला हुआ आप लोग ये चीजें भूल देखें। इतना अच्छा काम, इतना परफेक्ट काम, क्या सिंधी, क्या पंजाबी, क्या सराइकी, क्या फोक, क्या नीम क्लासिकल, क्या मॉडर्न गाने, और फिर उनकी सोच ऐसी थी, उनको पता था कि ये गाना, ये सिंगर इसके ये इसके लिखे, अब वो जिद करके चेंज करें, बल्कि उसकी बेड़ा कर उसका होगा। मगर उन्होंने जो तय किया वो आखिर में वही साबित होता था तनवीर भाई। और क्यों इस तरह से बना के देते थे आर्टिस्ट को कि एक दफा रह भी जाए तो दूसरी दफा देते थे, जरूर रह जाए फिर तीसरी दफा। जैसे माँ अपने बच्चे को निर्वाह देती है ना कि बेटा तुम इधर उधर मुंह कर कभी ले ले, अच्छा भूल गए और नीचे मुंह है तो ये ले लो। तो ये बड़े लोग यही करते थे भाई, खाली भरे का इतना ख्याल इनको बचा लेकिन इनको बाहर भी दिया जाए। यार बहुत सारे हमें मैं गवाह हूँ कि हमारा म्यूजिक डायरेक्टर यही काम कर रहे हैं। बेस्ट सिंगर के साथ बजा रहा हूँ तो उनके अंदर में एक कर्व होता है, एक तकलीफ होती है। हर दफा तो मेरी साथ का शुरू को नहीं होता ना, हर दफा हमेशा कभी भी उस आर्टिस्ट को डिस्करेज नहीं करते थे। इरशाद मैं कभी कभी मुस्कुराते हुए चेहरा करता है। इरशाद साहब अच्छा फिर ये कि उनका खुलूस देखें, यकीन कीजिए अगर वो हमेशा हर साल 2 दफा गुफरान भाई हमें न्याज पे बुलाते थे और हम चाहते थे अच्छा न्याज पे बुलाना देखें कैसा है। एक दफा खुदाए दावत देंगे, एक दफा फोन पे याद दिला दिया। तो आज बड़ी तनवीर भाई अच्छी आपने सजाई और यकीन कीजिए सर आपने मुझे सदारत के लिए बुलाया, मैं इस काबिल नहीं हुई।
लेकिन ये हमारे पास प्रोड्यूसर की बात जो तरक्की हुई क्रॉस मैनेजर से बन रही है, मगर दिल की बात ये कि भाई मैं प्रोड्यूसर ही अच्छा हूं। क्योंकि प्रोड्यूसर होता हूँ कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह कामयाबी का बड़ी मेहरबानी सर, मैंने आपकी ज्यादा समा तराशी की और बहुत माजरत चाहता हूँ। वो साहिबा बेटी है और जो बेटे में सलमान मुझे नजर आए, हाफिज साहब स्पीकर जो द्वारा उनका नाम गेंद रह गया, सबसे माजरत हो सकती उस फील्ड के अंदर और कोशिश की जाए कि उनको कैश अवार्ड भी दिया जाए। दूसरी बात, शकील साहब ने कहा कि वो फनकार आखिर में बेचारा कष्ट का शिकार रहता है, तो भाई माफ करना, फनकारों ने इत्तेहाद नहीं है, कई दिन इत्तेहाद नहीं है। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म माप है, बाप है, पता कई बनेंगे वहां भी इत्तेफाक नहीं है, इसलिए हम लोग सब पीछे हैं। अगर आप लोग सब मुतहिद हो जाएं तो हुकूमत की क्या मजाल है कि वो आपको 50 करोड़ का सालाना ग्रांट ना दे, ऐसा मुमकिन है। और कल्चर डिपार्टमेंट में हो भी रहा है, उसमें आधे फनकारों को पैसे मिल रहे हैं और आधे जो है वो खाए जा रहे हैं 100%। मैं सही बता रहा हूँ, हम तो बहुत करीब से उसको बात कर चुके हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 60,000 रुपये साल के 15,000 की किस्त मिल गई।